का प्रार्थना. Inhale, take a deep breathing. Inhale. Inhale. प्रार्थना के लिए तैयार होंगे. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाद्वै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे लगाते हुए आंखों को खोलेंगे. तैयार हो. Hand head up. Exhale, head down into the side. Inhale, head up. Exhale, head down into the side. Inhale, head up. Exhale, head down into the side. Switch hands for a pranayama and then we move towards meditation. Inhale, come to the center and twist your neck towards right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Center. Exhale करते हुए right. Inhale, center. Exhale, left. Come to the center. Chin to the chest and rotate your whole neck from right to left. Inhale and exhale. When it goes up, inhale fully. And when it goes down, exhale completely. Inhale up to your right shoulder and exhale from your left shoulder. Inhale up to your right shoulder and exhale from your left shoulder. Last round. Now reverse rotation from left to right. Inhale up to your left shoulder and exhale from your right shoulder. Inhale up to your left shoulder. Exhale from right shoulder. Inhale left and exhale from your right. Inhale up to your left and exhale from your right. Last round. Inhale left and exhale from your right. Come to the center. Now twisting करेंगे शिव श्याम में. Left hand on your right knee and right hand over your head. Bend completely towards your left side. अपने लेफ्ट साइड में झुकेंगे. आपके राइट बैक में जो स्ट्रेच आ रही है उसे फील करें. होल्ड फॉर 20 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Come back to center. 1 2 and another side. Bend towards right side. Look towards your palm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Come back to center. Now twisting completely on your back. Alternate will do left and right. Left side, right side. Exhale completely and twist. 5 4 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back to center. Now, open your hands, stretch as much as you can, and then stretch fully. Imagine both sides is a wall and you are pushing the wall and stretch completely. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rotate fully in round circle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come back to center. Now take a deep breathe in. Roll your shoulder back. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse front. 1, 2, 3, 4, and 5. Come back to center. Now sit in a Vajrasana. Interlock your hands on your back. Stretch as much as you can and look up. Open and close the mouth for 20 count. Inhale, center and bend forward. Stretch your arms up and hold. Try to push your head down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come back to center. Release your arms, relax your fingers and upper arm. Press your upper arm. मंडूकासन के लिए तैयार होंगे. सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे एब्डोमिनल के सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, बैलेंस करता है. इनहेल, फिस्ट बनाते हुए लिटिल फिंगर को अपने नवल के दोनों साइड में रखेंगे. इनहेल फुली एंड एक्सेल कंप्लीटली. पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए, सामने देखें एंड होल्ड. 1, 20 काउंट तक होल्ड करेंगे. इनहेल, कम बैक टू सेंटर. नाउ इसी मुद्रा में हम कपालभाति कर लेते हैं, भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं. भस्त्रिका प्राणायाम में आप वज्रासन में और सुखासन में दोनों में बैठ सकते हैं. जहां आप कंफर्टेबल हो बैठ जाएं. अपने हाथों की फिस्ट बना लें. क्रिया के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे. इक्वल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल इक्वल. भस्त्रिका मतलब फोर्सफुल एक्सेलेशन. जो हार्ट की प्रॉब्लम वाले हैं, जो जिनको प्रेगनेंसी है, तो वो फास्ट नहीं करें, वो बिल्कुल स्लो. जैसे हम 20 कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 या 15 करें. धीरे धीरे श्वास को लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें. तो हम इनहेल एंड एक्सेल इक्वली करेंगे. फोर्सफुल एक्सेलेशन अगर जो नॉर्मल है, वो फोर्सफुल एक्सेलेशन भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार होंगे. इनहेल एंड स्टार्ट. सामने की तरफ हाथ को करके इसी तरह से करेंगे. जब आप ओपन करें अपने हैंड्स को, पूरी तरह से ब्रीथ को इनसाइड लें, श्वास भरे अंदर, और जब पास में लाएं फिस्ट को तो श्वास को छोड़ना है. 20 काउंट इसी तरह करें.
रिलीज। इसी तरह से अपने आर्म्स को खोलते हुए सांस को भरेंगे और एक्सहेल करते हुए पास में लाएंगे, कॉन्टेक्ट योर चेस्ट। तो इनहेल, ओपन योर चेस्ट एंड एक्सहेल, कॉन्टेक्ट योर चेस्ट लाइक, और 20 काउंट करेंगे। इनहेल, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऐसे करें, सांस को धीरे धीरे ले और धीरे धीरे छोड़े, बाकी नॉर्मल पोजीशन वाले फास्ट करें। Keep your eyes closed. Feel the changes in your lungs. Your vital capacity of lungs are increased now. Whole upper part of your body, your nostril, your neck, your eyes, all are cleansed with this kriya, Vastrika kriya. जल नीति का इफेक्ट आता है वो इस भस्त्रिका प्राणायाम से भी आता है। आपका पूरा अपर पार्ट क्लींस हो जाता है। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन। इसी को हम विदाउट क्रिया करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम को विदाउट क्रिया। अपने दोनों हाथों को नी पे लगा लें और इनहेल एंड एक्सहेल फुल्ली विद ओनली योर लंग्स पे ध्यान रखते हुए, आपके लंग्स को देखते हुए आपको चेस्ट में श्वास को पूरी तरह से भरना और पूरी तरह से आपको खाली। इनहेल, इसी को हम फास्ट करेंगे। Release and relax. Feel the changes in your lung, heart, each and every cell of your upper part of the body completely cleansed now. Your upper tract are completely blockage free. आपकी जो श्वास लेने की क्षमता है उसमें कहीं भी कोई रुकावट है वो इस प्राणायाम से दूर होती है। This is the best for cold and cough. Now we move towards कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, या एक कुशन लगा करके भी बैठ सकते हैं, या आप सुखासन में बैठ के भी कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप सुखासन में भी बैठे हैं तो आप हाथों को नी पे लगा लें ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। नाउ इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथ इन, लंबी गहरी श्वास लेना है। और अगर आप बिगनर से तो 20-20-20 के 3 स्ट्रोक्स लगाए, रुके, हम उसी के हिसाब से करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेने के बाद 20 स्ट्रोक्स लगाना है, फिर छोड़ना है, फिर 20 स्ट्रोक्स लगाना है, नहीं एक बार इनहेल करने के बाद। इस तरह से हम 3 राउंड करेंगे। अब अगर आप उसमें चाहें तो अपने पंच तत्वों के साथ भी कर सकते हैं। तो हम पहले जल मुद्रा के साथ करेंगे। जल मुद्रा हमारी लिटिल फिंगर एंड थंब के टिप को मिलाते हुए अपने थाइस पे रख दें या उल्टा रख दें। और जल मुद्रा बनाने के बाद आप इनहेल करेंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर, एंड स्टार्ट इन एक्सेलिंग। 1 सेकेंड, 1 स्ट्रोक। टेक अ डीप ब्रीथ इन। सेकंड मुद्रा हम पृथ्वी मुद्रा बनाएंगे जो हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस करती है। जल मुद्रा हमारे स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करती है और हमारे पूरी लिक्विड को, बॉडी के अंदर जो 75% पानी है उसको बैलेंस करती है और स्वादिष्टान चक्र के लिए काम आती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारे लंग, ये ओवरीज वगैरह, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनको सबको बैलेंस करने का काम करती है। अभी हम पृथ्वी मुद्रा की तरफ पढ़ेंगे जो हमारे पूरी बॉडी के वेट को बैलेंस करती है, क्योंकि पृथ्वी
से क्या होता है, अन्न, और हाँ, जो हम अन्न खाते हैं उसी से हमारी ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो पृथ्वी मुद्रा, अगर आप कहीं इम्बेलेंस है, वेट ज्यादा है, कम है, तो आप इसको पृथ्वी मुद्रा को लगा सकते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा हमारे बॉडी के लिए और हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए। इसी के साथ हम कपालभाति करेंगे ताकि हमारा टॉक्सिन्स फ्री हो बॉडी से, हमारे मूलाधार चक्र से। इनहेल डीपली एंड स्टार्ट। आप पृथ्वी की तरफ देखते हुए भी इसको कर सकते हैं, नीचे गर्दन करते हुए। में आ जाए, टेक ए डीप ब्रीथ इन। अब हम आकाश मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। आकाश मुद्रा हमारे बॉडी के अंदर जो भी शून्यता है, जहाँ पे भी खाली स्थान है, उसको प्रकट करता है। आप जैसे ओवर ईटिंग कर रहे हो तो क्या होगा, आपको श्वास लेने की भी जगह नहीं बचेगी। तो ऑक्सीजन और पानी के लिए खाने के बाद इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब आपको भूख है उसका आधा खाए, 1/4 आप पानी पिए और के लिए रखें, और 1/4 आप ऑक्सीजन के लिए रखें, तो आपका स्टोमक थोड़ा खाली रहेगा। तो क्या होगा, आकाश मुद्रा को स्पेस मिलेगा ज्यादा। आपके पूरी बॉडी में स्पेस जो होता है वो आकाश मुद्रा को बिलोंग करता है, और आपके विशुद्धि चक्र को भी एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो ये आकाश मुद्रा बनाने के बाद मिडिल फिंगर और टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड टिप ऑफ योर अप, ये हमारी आकाश मुद्रा हो गई। इसको लगाने के बाद हम कपालभाति करेंगे और आकाश की तरफ आप फेसिंग कर सकते हैं अपना। इनहेल, टेक डीप ब्रीथ इन एंड स्टार्ट 20 स्टॉप। नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, सीधा कर दें। टेक डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल द ब्रीथ आउट। अभी हम अग्नि मुद्रा बनाएंगे। अग्नि मुद्रा क्या होता है, हमारा ये चौथा मुद्रा है अग्नि मुद्रा। ये हमारी अग्नि मुद्रा, जब हम रिंग फिंगर को अपने थंब से दबा लेते हैं, इसको अपने थंब पे, थाइस पे रखते हुए अग्नि मुद्रा के साथ करेंगे। आप अपने थर्ड आई सेंटर पे सूर्य को विजुलाइज करके भी अग्नि मुद्रा कर सकते हो, उससे भी आपको वो ऊर्जा मिलेगी। और आपकी जठराग्नि को ये प्रदीप्त करती है। आपने जो भी खाना खाया, आपको गैस है, अपच है, तो आप ये मुद्रा लगा के आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो हमारे जो, और बॉडी में फैट भी ज्यादा है, वेट लॉस भी करती है ये अग्नि मुद्रा। तो बहुत इसके फायदे हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो प्राणायाम के साथ इसको अपने इंक्लूड कर सकते हैं, या मेडिटेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनहेल, टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड 20 स्ट्रोक्स विद अग्नि मुद्रा। डीप ब्रीथ इन, लंबी गहरी श्वास लेते हुए आप वायु मुद्रा। वायु मुद्रा होता है हमारे इंडेक्स फिंगर को हम से दबा देते हैं, तो ये हमारे वायु को बैलेंस करती है। जो बॉडी में वायु बह रही है आपके, उसको बैलेंस, हमारे शरीर में पंच प्राण वायु होती है, उसको बैलेंस करने का ये काम करती है। जैसे अपान, उदान, व्यान, प्राण और अ, ये पंच प्राण वायु, समान प्राण वायु, इस तरह से जो हमारी 5 प्राण वायु है उनको ये बैलेंस करने का काम करते हैं। तो हम वायु मुद्रा लगाते हुए पहले हम राइट साइड में 20 काउंट करेंगे एंड देन लेफ्ट साइड में 20 काउंट करेंगे, ताकि ट्विस्टिंग के साथ हम वायु मुद्रा को करेंगे। इस तरह से आप हाथों को उल्टा भी रख सकते हो, सीधा भी रख सकते हो, लेकिन उल्टा रखने से क्या होगा, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी अगर आप सुखासन में बैठे। नाउ फेस टुवर्ड्स राइट एंड डू इस तरह से अपने हाथों को लगा ले एंड स्टार्ट 20 स्ट्रोक। आप चाहे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक हाथ से बंद करते हुए भी इसको कर सकते हैं। तो एक हाथ आपका नी पे है और राइट नोस्ट्रिल आपका प्रणव मुद्रा बना के करें।
रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दे जब आप राइट साइड में है। 20 स्ट्रोक्स लेंगे। ये मैंने एक नोस्ट्रिल से इसलिए कराया कि राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारे वायु को, हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारे चंद्र नाड़ी को बिलोंग करती है और राइट नोस्ट्रिल हमारे लेफ्ट सूर्य नाड़ी को बिलोंग करती है। तो दोनों नाड़ियां स्वस्थ हो जाए, दोनों स्वर जो हमारे हैं वो स्वस्थ हो, उसके लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी हम वायु मुद्रा बनाते हुए राइट हैंड को नी पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए, सॉरी, राइट हैंड से ही करें हम प्रणव मुद्रा को। राइट हैंड से बंद करते हुए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को छोड़े और वायु मुद्रा आपकी लेफ्ट हैंड से बनी हुई नी के ऊपर रहेगी। जैसे स्टार्ट करेंगे, इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथ इन, बैक टू सेंटर। गर्दन को सीधा करते हुए keep your eyes closed and feel the changes into your vital capacity, into your lung, heart. कपालभाति प्राणायाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके न्यूरो सिस्टम को, दोनों को टॉक्सिन्स फ्री करता है। तो दोनों जगह आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। और फिर हमने पंच तत्वों के साथ इसको किया, तो इसका पंच तत्वों का जो हमारा ये शरीर है, जो पंच प्राण वायु है, उन सब में इसका इफेक्ट जाएगा, यानी पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट होगा जब हम पंच तत्वों के साथ इसको करते हैं। अब हम बाही कुंभक करेंगे एक बार। बाही कुंभक यानी प्रतिबंध लगाकर, जो महावेद मुद्रा होती है जिसका सबसे अच्छा रोल है। तो पहले हम उसमें एब्डोमिनल लॉक लगाएंगे, देन नेक लॉक लगाएंगे, जालंधरपन, एंड फिर हमारे डायफ्राम को ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, मूलबंध लगेगा। मूलबंध हमारा जेनेटल और हमारे एनएस के बीच में आता है। तो मूलबंध जो हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, उडियान बंध हमारे सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, और जालंधर बंध हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। तो तीनों चक्र भी एक्टिवेट होते हैं बाह्य कुंभक से। और ये महावेद मुद्रा भी हो गई जब हम तीनों को साथ में करते हैं। अलग अलग तीन बंद लगा सकते हो, लेकिन जब हम तीनों को साथ में करते हैं तो ये हमारी महावेद मुद्रा हो जाती है। तो इसका बहुत ही इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने। तो हम जो हमारे मूलाधार से ऊपर की तरफ जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही, तो ये मुद्रा लगाने से आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, आपकी धीरे धीरे ये कैपेसिटी बढ़ेगी। शुरू में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड लगाएं, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपकी मेडिटेशन में जो थर्ड आई खुलने की संभावना होती है वो धीरे धीरे प्रबल बनती है जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस मेडिटेशन की हो जाती है। तो दोनों हाथों को नींद पे लगाते हुए इनहेल करेंगे, एक्सेल गो डाउन कंप्लीटली। पूरी श्वास निकालने के बाद नाक को बंद करते हुए ऊपर आए, एब्डोमिनल लॉक लगा दे, चिन लॉक लगा दे, डायफ्राम को ऊपर करें और आपके मूल बंद को भी टाइट कर दें। तो इस तरह से ये तीनों बंद लग जाएंगे और आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कर सकते हैं। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, इनहेल, एक्सेल गो डाउन। श्वास लेंगे, एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, सॉफ्ट पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम ध्यान की तरफ मुड़ेंगे, उसके लिए हम 3 भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद हम ध्यान करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उसको हम बंद कर देते ताकि हम अपने अंदर की यात्रा कर सकें।
तो भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस अगर जिसकी ज्यादा होती है, इसे अपने अंदर अनहद नाद सुनाई देने लगता है, जो कंटिन्यूस हमारी सांसों में जो नाद हो रहा है, जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हो, और आप पूरी तरह से शांत होने के बाद अगर अपने अंदर उतरते हो और बहुत एकाग्रता आ जाती है आप में, तो आपको वो अनहद नाद सुनाई देने लगता है। तो अनहद नाद सुनाई दे, इसके लिए हमें प्रैक्टिस रेगुलर करनी है हर चीज। तो हम षडमुखी मुद्रा कैसे बनाते हैं? हमारे इंडेक्स फिंगर से हम जेंटली आईज पे रखते हैं। सेकंड जो हमारी मिडिल फिंगर है, उसको हम नॉस्ट्रल के बीच के पार्ट पे रखते हैं, और थर्ड फिंगर जो है उसको टिप ऑफ द नॉस्ट्रल पे रखते हैं। फोर्थ फिंगर अपर लिप्स पे रहती है। इस तरह से चारों फिंगर रहती है, हमसे हम अपने कानों को बंद करते हैं। पांचों, यानी हमने क्या किया, अपने नाक, कान, आंख और मुंह को बंद किया, और ये स्किन को टच किया। तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो लॉक हो गई, और हम अपने अंदर उतरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हम बोलेंगे तो नाक से ही श्वास निकलेगी, लेकिन मुंह बंद रहेगा, और हम हमिंग भी साउंड की तरह बोलेंगे। टंग आपकी उस समय पायलट पे रहेगी, तो आपका बहुत अच्छा ध्वनि होगा, और बहुत लंबी देर तक आप उसको कर सकते। तो अपने षडमुखी मुद्रा बना लेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, कंटिन्यूस 3 टाइम्स करेंगे। Release your hand अपने हेड रीजन में। इस साउंड के रेजोनेंस को महसूस करें। जो भ्रामरी है, उसके रेजोनेंस को अपने अंदर फील करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर, नाउ स्लोली फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेडिटेशन। लगेगा तो ठीक है, अपनी ध्यान की अवस्था बना लें। सुखासन की स्थिति, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, पाँव को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं तो क्रॉस लेग पोजीशन, या अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो एंकल से क्रॉस कर ले। एक लंबी गहरी श्वास है, 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, ब्रीथ इन, एक्सेल, बिना ही हम आज मेडिटेशन करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल कंप्लीटली। अपनी हर आती हुई और जाती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। जो भी आप श्वास ले रहे हैं, श्वास को देखने की कोशिश करें, कहाँ चल रही है। अपनी श्वासों के दृष्टा बन जाए। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। लंबी करें सांस अंदर और बाहर।
ऊपर आते हुए और जाते हुए श्वासों के साथ अपने आप को जोड़ दें, पूरी तरह से साक्षी भाव। अपनी सर्वव्यापी चेतना को नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे कि मेरा ध्यान गहरा और घना हो। अपनी हायर कॉन्शियसनेस से प्रार्थना, और मैं ध्यान की गहराइयों को अनुभव कर सकूं। पितामह पत्नी जी और महाअवतार बाबा जी गौतम बुद्ध को नमन करते हुए उनकी चेतना के साथ कनेक्ट होते हुए हम ध्यान में गहरे उतर रहे हैं। अपने श्वासों का ध्यान हर आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना न तो अंदर आ सके न बाहर जा सके। इतनी एकाग्रता अपनी श्वासों को देखें, दृष्टा बन जाए अपनी श्वासों के। कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है या आता है तो आने दें, लेकिन फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाएं। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों का ध्यान। पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ एकाकार हो जाए। श्वास ही हमारी गुरु है, श्वास ही हमारी मित्र। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ करके निर्वाण। पितामह पत्री जी का एक सबसे अच्छा स्लोगन है, घर में रहकर निर्वाण। यानी आप इस तरह से श्वासों का ध्यान करते करते घर में रह करके घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी अपने ध्यान की स्थिति को प्रगाढ़ कर सकते हैं, जहाँ आप निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाए, एक समाधि की अवस्था। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे बनाए रखें। फिर कोई श्वास आपके अंतर चक्षु से ओझल ना हो। अपने अंतर चक्षु से अपनी श्वासों को देखते रहेंगे फ्रेंड।
और अपने अंदर घूम जाए, अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करें। सांसों पे ध्यान बनाए रखें। लास्ट 10 मिनट्स। कोई आंखें ना खोले, अपना ध्यान पूरी तरह से अपने श्वासों पे बनाए रखें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास उसके साथ एक हो जाए, और अपने अंदर अपनी श्वासों की रिदम सुनो। इतनी एकाग्रता के साथ अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए। एक दिव्य प्रकाश को अपने सिर के ऊपर, ब्रह्मरंध्र से भी ऊपर महसूस करें। वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से आपके पूरे शरीर में और आपकी ऑरा में फैल रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दिव्य प्रकाश का एक गोला जो आपके सिर के ऊपर विद्यमान है, वो वैश्विक ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से आपके फोरहेड में, सिर के प्रत्येक भाग में, एक एक नसों में, नाड़ी में वो दिव्य प्रकाश घूम रहा है। आपका सिर हल्का होता जा रहा है। दिव्य प्रकाश से आपके सिर के प्रत्येक नाड़ी में ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। आपके गालों में, और आपके चेहरे पर एक चमक आ रही, सुंदरता बढ़ रही है। उस दिव्य प्रकाश की आभा आपके चेहरे को और ऊर्जान्वित कर रही, प्रकाशित कर रही। अब वो दिव्य प्रकाश आपके कानों की सारी नसों नाड़ियों में होता हुआ आपके गले में उतर रहा। गले के मध्य जो आपका विशुद्धि चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। दिव्य प्रकाश से एक एक नस और नाड़ियां सब टर्न अप हो रही है।
दोनों हाथों में उस दिव्य प्रकाश को जाता हुआ देखिए। अपने हाथों की उंगलियों, रिस्ट तक उस दिव्य प्रकाश से लाभान्वित हो रहे हैं। अपने हृदय और अपने चेस्ट में उस दिव्य प्रकाश को जाता हुआ देखिए। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही, वहां के सारे ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, सारी आर्टरी टॉक्सिन फ्री बन रही। दिव्य प्रकाश की ऊर्जा आपके लंग्स और हार्ट की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा रही है। पूरी तरह से आप स्वस्थ होते जा रहे हो। अब दिव्य प्रकाश आपके स्पाइनल कोड की एक एक नाड़ी में होता हुआ ऊपर से नीचे बह रहा है। सर्वाइकल से मिडिल बैक में, मिडिल बैक से लोअर बैक में, कॉक्सिक तक वो दिव्य प्रकाश एक एक वर्टिब्रा को एनर्जाइज करता हुआ आपके हिप और बोल जॉइंट तक जा रहा है। कभी कोई नर्व्स में या किसी में भी, जो भी हमारे स्पाइनल कोड से निकलती नर्व, सारी नर्व जो आपके माइंड को संदेश भेजती है, माइंड से बॉडी को संदेश भेजती है, तो ये स्पाइनल कोड के थ्रू ही होता है। जहाँ हमारी सारी नर्व्स आई वो सब स्टिमुलेट हो रही, टोन अप हो रही, और सारे फंक्शन बॉडी के बैलेंस हो रहे हैं। आपके एब्डोमिनल में डाइजेस्टिव सिस्टम, सोलर प्लेक्सिस, आपका हार्ट का जो चक्र है, अनाहत चक्र, उसको इम्प्रूव करता हुआ ये दिव्य प्रकाश आपके सोलर प्लेक्सिस में आ रहा है। नाभि के 2 इंच ऊपर जहाँ आपका मणिपुर चक्र है, उसको ऊर्जान्वित कर रहा है, जिससे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी ऊर्जान्वित हो रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश आपके सैक्रल चक्र में उतर रहा है, जो आपके जेनेटल से 2 इंच ऊपर और नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र, उसको एनर्जाइज करता हुआ आपके यूट्रस, ओवरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, जेंट्स में, इन सबको बैलेंस करता हुआ, सबको शुद्ध करता हुआ, पवित्र करता हुआ अब ये आपके मूलाधार चक्र में जा रहा है, जहाँ कॉक्सिक के नीचे सबसे नीचे पार्ट, आपके बैकबोन का सबसे निचला पार्ट और आपके जेनेटल और एनस के बीच का पार्ट मूलाधार चक्र, उसको एनर्जाइज कर रहा है। दिव्य प्रकाश से आपके अंदर एक साहस पैदा हो रहा है, आप लीडर बनते जा रहे हैं। स्ट्रांगनेस एंड स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है। आपके नीचे लोअर पार्ट जो भी है, टोस तक आपका ये दिव्य प्रकाश आ रहा है। पूरी बॉडी में इस दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ देख, अपने शरीर के चारों तरफ ओरा में भी इस दिव्य प्रकाश को देखिए। जहाँ भी कहीं डैमेज है, मन से, विचारों से, या आपके तन से, शरीर से, जहाँ भी कोई आपको ब्लॉकेज कर रहा है, दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से वो ब्लॉकेज हट रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ, मन से, तन से पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपका ध्यान भी गहरा होने लगा है। आप एक अफर्मेशन दे सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, शरीर से भी और मन से भी। दिव्य ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलता हुआ देखें। अपने हृदय तल पे ध्यान लाएं और अपने हृदय तल से अपने नियर एंड डियर को वो दिव्य प्रकाश उनमें भी जाता हुआ देखें, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, आपको लाभान्वित कर रहा है। आपके मन के अंदर शांति और प्रेम जो उमड़ रहा है, वो आपके नियर एंड डियर में भी जा रहा है, आपके स्पाउस, आपके बच्चों में। धीरे धीरे इस दिव्य प्रकाश को, दिव्य ऊर्जा को, जो प्रेम की ऊर्जा है, जो शांति की ऊर्जा है,
उसको अपने आसपास नेबर्स में भी भेजें, अपने हेल्पर्स में भेजें, अपने एरिया के सभी लोगों में उसको जाता हुआ देखें। अब इस दिव्य प्रकाश को पूरे विश्व में फैला दें। विश्व के प्रत्येक प्राणी में, जीव में, प्लांट में, सब में इस दिव्य प्रकाश को जाता हुआ देखें। इस पृथ्वी माँ में उसको जाता हुआ देखें। ये दिव्य प्रकाश सभी को लाभान्वित कर रहा है। सभी के जीवन में शांति और प्रेम फैलता जा रहा है। धीरे धीरे फिर से अपने आप में आ जाए। अपने शरीर को महसूस करें और अपने आप को ग्रेटिट्यूड के भाव से भर दे, धन्यवाद के भाव से भर दे। इतने सुंदर ध्यान के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। और अपने नियर एंड डियर का धन्यवाद करें, अपने हेल्पर्स का धन्यवाद करें, इस पृथ्वी माँ का धन्यवाद करें, पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी का धन्यवाद करें, जो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है सभी का धन्यवाद करें। इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करें जिससे हम दूर बैठे हुए भी ध्यान कर पा रहे हैं। अपने आप का धन्यवाद करते हुए अपने गुरु मेंटर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, पितामह पत्नी जी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी, महाअवतार बाबा जी और गौतम बुद्ध का धन्यवाद करें जिन्होंने इतना सुंदर आनापानासती ध्यान हमें दिया, जिससे अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपने जीवन में शांति महसूस कर रहे हैं और लोगों के भी जीवन में शांति ला रहे हैं। इस दुनिया को शाकाहार जगत, ध्यान जगत बनाने में मदद कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद करते हुए एक सुंदर प्रार्थना, मंगल प्रार्थना सभी के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palm, cup your eyes and slowly open them. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू ध्यान के सत्र में बने रहने के लिए।